Hello and good afternoon everyone. How are you? Hopefully सेट्स आप घर में भी कर रहे होंगे. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? डिफरेंट ऑपरेशंस पर बेस्ड थ्योरम्स की थी ना, थ्योरम्स ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स. तो जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं. सपोज देयर आर टू सेट्स A and B, and if you want to count how many number of elements are there in A union B, इसको अपन बोलेंगे क्या? Number of elements either in A or in B, and that is nothing but what? Number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B. और वेनिन डायग्राम की हेल्प से हम लोगों ने इसको प्रूव भी किया था कि NA union B is given by NA plus NB minus NA intersection B. अच्छा, कुछ और डिडक्शंस भी आपने किए थे. वो तो वेनिन डायग्राम को देख करके आप कुछ भी और नया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं. फिर सेकेंड रिजल्ट लिखा था साहब, इफ देयर आर थ्री सेट्स A, B and C, then number of elements in A, U, B, U, C. That means number of elements in at least one of the three. Number of elements either in A or in B or in C. And that is NA, U, B, U, C. That is NA plus NB plus NC minus NA intersection B minus NB intersection C minus NC intersection A plus number of elements in A intersection B intersection C. फिर आपने लिखा था कि let A, B and C are the three sets, then number of elements in exactly two of the three sets. इसकी मीनिंग मैंने आपको क्लियर किया था. exactly का मतलब क्या? exactly in A and B और exactly in B and C और exactly in C and A, जिसको हमने जब प्रूव किया था तो रिप्रेजेंट किया था x plus y plus z से. And that is equals to what? NA intersection B plus NB intersection C plus NC intersection A minus 3 times NA intersection B intersection C. और फिर एक last but one. If there are three sets A, B, C, then number of elements in exactly one of the three. In exactly one of the three. P plus Q plus R जिसको आपने लिखा था. And that is equals to what? NA plus NB plus NC minus 2 times NA intersection B minus 2 times NB intersection C minus 2 times NC intersection A plus 3 times NA intersection B intersection C. ऐसा कुछ आपने लिखा था. फिर उसके बाद हम लोगों ने एक और लिखा था, नंबर 5, let A, B are the two sets, then number of elements neither in A nor in B. Number of elements in A complement intersection B complement, and that is NU minus NA union B. इसकी मीनिंग भी और ये प्रूफ्स भी लिए थे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं. और सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A complement union B complement NU minus NA intersection B. तो ये रिजल्ट्स जो आपने लिखे थे ना इतने सारे, इसको अपन क्या बोलते हैं कि थ्योरम्स ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स. अच्छा, तो इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स आपको मिलेगी उसमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं. कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके लिए मैंने एक दो एग्जांपल्स दिए थे, लेकिन ज़्यादा दे नहीं पाया था, तो आज कंप्लीट करते हैं उसको ना. ढेर सारे एग्जांपल्स करते हैं, होपफुली आप उससे बाकी क्वेश्चंस कनेक्ट कर पाओगे. ठीक है, चलो. तो there are 20 students in a chemistry class and 30 students in physics class. एक काम करते हैं, ये जो फिजिक्स क्लास के स्टूडेंट्स हैं ना, इनको मैं सेट A रिप्रेजेंट्स केमिस्ट्री क्लास, है ना, ऐसा मान लेता हूँ कि सेट A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? केमिस्ट्री क्लास को. और सेट B स्टूडेंट्स ऑफ फिजिक्स क्लास. तो एक एक करके लिख भी लेते हैं, लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है. 20 स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री क्लास, कैन वी से दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स is what? 20. Number of elements in set B is equals to 30. Find the number of students who are either in physics class or in chemistry class. सीधी सी बात है, जैसा स्टेटमेंट उसने बोला उसको फॉलो करना. उसने बोला कि भाई either in chemistry class or in physics class. That means you have to find number of elements in A union B. ये आपका required part है ना. लेकिन साहब उसने क्या किया कि दो केसेस बना दिए. When the two classes meet at different hours and 10 students are enrolled in both the courses. अच्छा, तो दोनों ही कोर्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के ही कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B कितना दिया हुआ है? 10. ये समझ में आ रहा है ना?
10 स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन बोथ द क्लासेस, मतलब फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज गिवन 10। मुझे एन ए यूनियन बी पूछ रहा है। अच्छा, तो पहला केस, जो पहला क्वेश्चन आप करने वाले हो वो मुझे मालूम है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू व्हाट, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये तो पहले मैंने फॉर्मूला लिख लिया साहब, है ना, ऐसा होता है, इसमें कोई दिक्कत। एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इज व्हाट, एन ए यूनियन बी। लेकिन उसने पूछा ये है कि व्हेन द टू क्लासेस मीट एट डिफरेंट आवर्स। तो देखो, ऐसी कोचिंग की बात आप खुद भी सोचो कि कोचिंग्स की क्लैशेस नहीं हैं भाई। एक जगह फिजिक्स की क्लास लग रही है 3 to 5 और एक जगह केमिस्ट्री की क्लास लग रही है 8 to 10 इवनिंग में, 3 to 5 और 8 to 10। तो कोई बच्चा फिजिक्स की क्लास में भी आ सकता है, फिर केमिस्ट्री की क्लास में भी आ सकता है, और कोई ऐसे बच्चे भी हैं जो दोनों ही क्लासेस में पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। तो क्या दोनों क्लासेस अटेंड कर सकते हैं वो बच्चे? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग टाइमिंग पर है ना। फिजिक्स की क्लास तो 3 to 5 है, केमिस्ट्री की क्लास 8 to 10 है। तो जो बच्चे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही क्लासेस में, दोनों ही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं, वो भी क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो इस पहले वाले पे पार्ट में लिखा है कि व्हेन द टू क्लासेस मीट एट डिफरेंट आवर्स एंड 10 स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन बोथ द क्लासेस, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच आर आइदर इन फिजिक्स और इन केमिस्ट्री क्लास, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो 20 प्लस 30 माइनस 10, ये हो जाएगा साहब 20 प्लस 30 माइनस 10, और ये कितना आंसर आ जाएगा साहब? 40 आंसर आ जाएगा। सो देयर आर 40 स्टूडेंट्स विच आर आइदर इन फिजिक्स और इन केमिस्ट्री क्लास। अच्छा, सेकेंड पार्ट देखते हैं ना। सेकेंड पार्ट में भी क्वेश्चन वही पूछ रहा है वो, हु आर आइदर इन फिजिक्स और इन केमिस्ट्री, मतलब पूछ तो वही रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यू बी पूछ रहा है। मैं फिर से फॉर्मूला लिख देता हूँ साहब, ये कितना हो जाएगा? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। बट नाउ दिस टाइम कंडीशन इज डिफरेंट। क्या लिखा हुआ है? टू क्लासेस मीट एट सेम आवर, टू क्लासेस मीट एट सेम आवर। तो देखो, फिजिक्स में एनरोल होने वाले स्टूडेंट्स हैं, केमिस्ट्री में एनरोल होने वाले स्टूडेंट्स हैं, लेकिन दोनों की टाइमिंग सेम है साहब। फिजिक्स की क्लास भी 3 से 5 लग रही है और केमिस्ट्री की क्लास भी 3 से 5 लग रही है। तो अब मुझे बताओ कि जो कॉमन स्टूडेंट्स हैं वो या तो फिजिक्स की क्लास अटेंड करेंगे या केमिस्ट्री की, दोनों क्लासेस एक साथ कैसे अटेंड कर सकते हैं? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी दिस टाइम नाउ 0। भाई इस बार नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑल्दो जबकि ऐसा है कि 10 बच्चों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही क्लासेस में एनरोल किया हुआ है, बट प्रॉब्लम इज दैट देयर कोचिंग टाइमिंग्स आर सेम, है ना, सेम टाइमिंग पे क्लास लग रही है। तो ए इंटरसेक्शन बी तो हो नहीं सकता साहब कि कोई बच्चा फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की क्लास साइमल्टेनियसली अटेंड कर ले। इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, समझ में आ गया भाई? इसलिए पॉसिबल नहीं है साहब कि दोनों ही कोचिंग क्लासेस की टाइमिंग सेम है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज व्हाट? 0। नाउ दिस टाइम आंसर विल बी व्हाट? एन ए 20, एन बी 30, एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? 50। तो दिस टाइम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच आर आइदर इन फिजिक्स क्लास और इन केमिस्ट्री क्लास, अगर मैं आपसे पूछूं तो दिस टाइम आंसर इज व्हाट? 50। सही है। तो डिफरेंट आवर्स के लिए इंटरसेक्शन हो सकता है, लेकिन सेम आवर्स में अगर क्लासेस हैं तो इंटरसेक्शन 0 हो जाएगा। 63% ऑफ द पर्सन्स लाइक ऑरेंजेस, वेयर 76% लाइक एप्पल। What can be said about the percentage of the persons who like both oranges and apple? तो एक काम करते हैं साहब, मान लेते हैं कि साहब परसेंटेज में दिया हुआ ना, परसेंटेज में दिया हुआ, तो मान लेते हैं कि साहब नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट, टोटल कितने परसेंट थे साहब? 100 थे। टोटल कितने परसेंट थे? 100। अच्छा, आगे क्या बोलता है? 76% लाइक एप्पल्स और 63% लाइक ऑरेंजेस। अच्छा, ऑरेंजेस लाइक करने वाले जो लोगों का सेट है उसको मैंने ए से रिप्रेजेंट कर दिया, और एप्पल को पसंद करने वाले जो लोग हैं उनको मैंने सेट बी से रिप्रेजेंट कर दिया। तो टोटल कितने लोग हैं? 100। ठीक है। अच्छा, 100 हैं
उनमें से NA ऑरेंजेस पसंद करने वाले कितने लोग हैं? 63%। तो अब तो 63 आ जाएगा, अब तो 63 आ जाएगा साहब। और NB कितना हो जाएगा? 76% लिखा है ना, तो टोटल 100 मैंने लिए, तो 100 में से 76 इसको पसंद करने वाले। अब वो पूछ रहा है जी, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द परसेंटेज ऑफ द पर्सन्स हु लाइक बोथ ऑरेंजेस एंड एप्पल्स? दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन पे। ये मान लेता हूं मैं, सॉरी ये आपका रिक्वायर्ड है। अच्छा, इस केस में ना, इस केस में भी आपको उस बात को ध्यान में रखना है कि टोटल कितने पर्सन हैं? 100% में से हर कोई या तो ऑरेंज पसंद कर रहा है या फिर एप्पल पसंद कर रहा है। दैट मीन्स दिस वन इज नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी गिवन है साहब। और ये कितना दिया हुआ है? 100। यहां पर यूनिवर्सल सेट और ए यूनियन बी की मीनिंग एक ही है, आइदर एप्पल और ऑरेंज। तो ये अगर 100 है एंड ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है, फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी दैट इज गिवन बाय व्हाट? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये आपने ऐसा कहानी कर ली। अच्छा, ये कितना दिया हुआ है साहब? 100। दिस वन इज व्हाट? 63 प्लस ये कितना है? 76 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये अगर आप निकालोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा साहब? है ना, 76 प्लस 139 माइनस 100 दैट इज व्हाट? 39। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी मतलब ऑरेंजेस एंड एप्पल्स दोनों को पसंद करने वाले लोग कितने? 39 आउट ऑफ 100। सो व्हाट इज द परसेंटेज? उसने परसेंटेज पूछना, कितने परसेंट लोगों ने, कितने प्रतिशत लोगों ने ऑरेंज और एप्पल दोनों पसंद करना है? तो 39% आ जाएगा, बिकॉज टोटल इज व्हाट? 100 अपन ने काउंट किया था। सही है। चलिए क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, 100 वेयर लिस्टेड एज ड्रिंकिंग एप्पल जूस, 150 as drinking orange juice and 75 were listed as drinking apple as well as orange juice. Find how many students drinking neither apple juice nor orange juice. ना तो एप्पल जूस पसंद कर रहे हैं और ना ही ऑरेंज जूस। तो सर्वे कितना है? 400 स्टूडेंट्स का सर्वे किया गया। मतलब टोटल काउंटिंग कितनी है साहब स्कूल में? जिन लोगों का सर्वे किया गया वो 400 है। सही है। अच्छा, 100 वेयर लिस्टेड एज ड्रिंकिंग एप्पल जूस, एप्पल जूस वालों को सेट ए लिख दिया। 150 ड्रिंकिंग एज ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस वालों को मैंने सेट बी लिख दिया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मतलब एप्पल जूस को पसंद करने वाले ना, ड्रिंकिंग एप्पल जूस वाले कितने लोग हो गए साहब? 100 हो गए। अच्छा, एन बी कितना हो जाएगा? एन बी हो जाएगा साहब 150। और दोनों को पसंद करने वाले ना, दोनों को पीने वाले लोग कितने हैं साहब? ए इंटरसेक्शन बी इज गिवन इक्वल 75। अब सबसे पहले तो बात दिमाग में आपको ये रखनी है कि साहब उसने पूछा क्या है। उसने पूछा है फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर ड्रिंकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। इसका मतलब उसने पूछा है साहब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये बात अब तो नहीं भूलेंगे अपन, क्योंकि हम लोगों ने जो लास्ट रिजल्ट लिखा था ना, लास्ट थ्योरम लिखी थी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नाइदर इन ए नॉर इन बी। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ? एप्पल जूस नहीं पीने वाले। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ? ऑरेंज जूस नहीं पीने वाले। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया? नाइदर ए नॉर बी। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि ये आपको याद होगा कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी होता है। अरे होता है ना? ओके। अच्छा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस एन ए यूनियन बी कितना होता है साहब? ये होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। कोई डाउट? अच्छा, तो यूनिवर्सल सेट में कितने लोग? 400 माइनस
Na, बस लिखा है, सब कुछ तो लिखा है साहब, है ना। ये हो जाएगा 100, दिस वन इज व्हाट 150 माइनस ऑफ 75, तो 250, 150 plus 75, that is what 225. तो how many persons are there, not how many students are there not liking neither apple nor orange, ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन को मैं कुछ ऐसा सोचूं, ये तो कंप्लीट थ्योरेटिकल हो गया साहब, है ना। अगर इसी क्वेश्चन को मैं वेनिन डायग्राम की हेल्प से क्वेश्चन करना चाहूँ ना, तो मैं लिख देता हूँ मेथड 2, सही है। अच्छा, मैंने क्या किया, ये स्कूल में टोटल जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसको मैंने यूनिवर्सल सेट बना दिया। यहाँ पर कितने लोग हैं साहब, 400 लोग हैं शायद। हाउ मेनी आर देयर, 400, सही है। अच्छा, इसके अंदर मुझे 2 सेट बनाने हैं ना, एप्पल जूस वाले और एक ऑरेंज जूस वाले। ये एप्पल जूस को रिप्रेजेंट कर रहा है साहब, ये सेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एप्पल। और ये वाला जो पार्ट है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑरेंज। ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट किया मैंने, सेट ए से, और इसको सेट बी से। अच्छा, अब अपन देखें जरा सा, कॉमन पार्ट कितने लोग हैं ना, कॉमन पार्ट 75 वे आर लिस्टेड एज ड्रिंकिंग एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस। मतलब ये जो ब्लॉक होगा ना, इस वाले ब्लॉक में कितने लोग आएंगे। अच्छा, पहले मैं तो बोला था मैंने आपसे कि इनको आप जितने भी रीजन्स हो ना, उनको आप अल्फ़ाबेटिकल कुछ ना कुछ डिनोट कर लेना, XYZ रिप्रेजेंट कर लें, PQR कर लें, ABC लिख दें, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, मुझे बताओ, ये जो C लिखा है ना, C में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 75, कन्फर्म 75 होने चाहिए साहब, है ना। तो ये हो गया साहब 75 वे आर ड्रिंकिंग एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस। अच्छा, जल्दी से देख के बताओ कि एप्पल जूस को पसंद करने वाले लोग कितने हैं, एप्पल जूस को पसंद करने वाले लोग कितने हैं, 100। तो ये टोटल ना, ये टोटल 100 होना चाहिए साहब, यहाँ से लेकर के ये वाला पार्ट 100 होना चाहिए। 75 ऑलरेडी यहाँ पर है, तो यहाँ पर कितना होगा, ए कितना हो जाएगा, बी आ जाएगा, सही है। अच्छा, 150 एज ड्रिंकिंग ऑरेंज जूस, ये जो पूरा का पूरा सेगमेंट है ना, ऑरेंज जूस को पसंद करने वाले लोग, पीने वाले लोग कितने हैं, टोटल 150, 75 ऑलरेडी है, तो ये वाला सेगमेंट कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। और मुझे निकालना क्या है भाई, ये वाला पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, द पर्सन हु लाइक आइदर एप्पल जूस और ऑरेंज जूस, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है कि नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट लाइकिंग आइदर एप्पल जूस, सॉरी नाइदर लाइकिंग एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। मतलब मुझे कौन सा वाला पार्ट निकालना है, ये वाला पार्ट निकालना है। ये पर्सन्स, ये स्टूडेंट्स वो होंगे जो ना तो एप्पल जूस को पसंद करेंगे और ना ही ऑरेंज जूस को पसंद करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा भाई, ऐसे दिख रहा है ना, 75 प्लस 75 कितना, 75 प्लस 75 150, 150 प्लस 25 175, तो ये हो गया। तो टोटल कितने हैं, 400, 400 में से 175 ना 175 ऐसे हैं जो या तो एप्पल जूस को पसंद कर रहे हैं या फिर ऑरेंज जूस को पसंद कर रहे हैं। तो कितने ऐसे लोग होंगे जो ना तो एप्पल जूस को, नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस वाले हो जाएंगे। तो 400 माइनस 175 आपका आंसर हो जाएगा। तो वेनिन डायग्राम से आपको ये वाला जो आंसर चाहिए ना, ये वाला रिक्वायर्ड जो है वो कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 400 माइनस 175। 175 आया कैसे साहब, 25 प्लस 75 प्लस 75, ये आप हटा दीजिए तो दैट कम्स अगेन 225, ये आपका आंसर हो जाएगा। सही है। तो देखो बहुत सारी चीज़ें तो आप कॉमन सेंस से कर सकते हो, लेकिन ठीक है मैथमेटिकल फॉर्मेशन है इसलिए कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी पड़ रही। तो यहाँ पर मैं वेनिन डायग्राम की हेल्प से भी वही चीज़ रिप्रेजेंट कर सकता हूँ जो आपने थ्योरम्स की हेल्प से निकाली। ठीक, नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज, फॉर्मूला लिख दिया,
जो भी चीज़ें दी हैं सब्सटीट्यूट कर दिया, और वहाँ पर अपन ने देखा टोटल कितने लोग हैं, 400 लोग हैं, और जो कुछ भी दिया हुआ है उससे मैंने डिवाइड कर लिया जो भी आपके वेनिन डायग्राम के रिप्रेजेंटेशन थे। और आपको जो निकालना था कि जो ना ही एप्पल जूस को पसंद करते हैं और ना ही ऑरेंज जूस को पसंद करते हैं, तो टोटल माइनस ये जितने पसंद करने वाले हैं हटा दिया, तो उससे आपका आंसर आ गया। सही है, चलो और आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन। अच्छा, क्या लिखा है? देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद अ स्किन डिसऑर्डर, 120 हैड बीन एक्सपोज्ड टू द केमिकल C1। केमिकल C1 से एक्सपोज होने वाले लोगों को मैंने सेट ए बोल दिया, और केमिकल C2 से एक्सपोज होने वालों को मैंने सेट बी बोल दिया। तो क्या क्या दिया हुआ है ना, क्या क्या दिया हुआ है वो पहले मैं लिख लेता हूँ साहब। देयर आर 200 इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट एलिमेंट्स 200 हैं। अच्छा, स्किन 120 केमिकल C1 से गड़बड़ हो रहा है भाई, तो 120 लिख दिया मैंने, एन बी भी लिख दिया, दैट इज गिवन इक्वल्स व्हाट, कितना दिया हुआ है एन बी, 50, और 30 टू बोथ द केमिकल C1 एंड C2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ये कितना दिया हुआ है साहब, 30 दिया हुआ है। अच्छा, आपसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज्ड टू केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। मतलब आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस बी। अच्छा, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है भाई? नंबर ऑफ C1 से तो है लेकिन C2 से नहीं है। इसमें क्या पूछ रहा है? केमिकल C2 से है बट नॉट विथ C1, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस ए। अब भाई ये सेट्स तो आपको मालूम होना चाहिए ना कि B माइनस ए की मीनिंग क्या है, बिलोंगिंग टू B बट नॉट बिलोंगिंग टू A। केमिकल C1 और केमिकल C2 मीन्स यूनियन B, ये भी पूछ रहा है साहब। ठीक है, आई होप कि समझ में आ ही गया होगा। तो ये सब चीज़ें दे के रखी है उसने ना, सब चीज़ें दे के रखी है, तो एन ए यूनियन बी तो आप ऐसे ही निकाल लोगे। केमिकल C1 और केमिकल C2, तो पहला काम तो ये है साहब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी मैं निकाल के देख लेता हूँ। ये साहब आएगा कितना, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। बहुत ही अच्छा है साहब। अच्छा, तो एन ए कितना दिया हुआ है साहब, 120, तो ये हो गया 120 प्लस 150, सॉरी नॉट 150, 50 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितना, 30 दिया है। लिखा तो मैंने सही है ना, 200 लोग हैं, 120, 120 देन 50 एंड देन 30, सही है। तो ये कितना आंसर आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ये कितना आ जाएगा साहब, 140। ये आंसर तो 140 आ गया। अच्छा, फिर क्या क्या चीज़ें हैं? फिर आपसे पूछा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी। बना दूं वेनिन डायग्राम, जरा याद दिला दूं आपको। ये वाला पार्ट क्या है, ए माइनस बी, तो ये कैसे मिलेगा? टोटल में से बी सेट आप हटा देंगे, तो कैन वी से द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी इज व्हाट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अच्छा, बी माइनस ए निकालना है, तो ये कैसे निकालोगे? ये बी माइनस ए होता है, तो बी माइनस ए कितना होगा, ए यूनियन बी में से सेट ए आपको हटाना पड़ेगा, तो बी माइनस ए आ जाएगा। बहुत ही अच्छा। तो कैन वी से दैट दिस वन इज व्हाट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी माइनस एन। एक खत्म आंसर, और क्या है? अब एन ए यूनियन बी आपने कितना निकाला, 140, तो ये कितना हो गया साहब, ये वाला पार्ट 140 है, माइनस एन बी, बी वाला पार्ट कितना है, 50 है, तो माइनस 50 कर दीजिए, तो ये आंसर कितना आ गया, 90 आ गया। अच्छा, ये कितना है, 140 माइनस एन ए कितना दिया हुआ है, 120, ये आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना आ गया, 20 आ गया। खत्म। ये मैंने फॉर्मूले की हेल्प से कर लिया साहब, कोई दिक्कत? ओके।
आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। इसी क्वेश्चन को आप कुछ ऐसा भी कर सकते थे। वेनिन बना देता हूँ साहब, बड़ा सा एक बना देता हूँ। ये मैंने लिया सेट ए, सेट बी, ये यूनिवर्सल सेट हो गया साहब। इसमें टोटल कितने लोग हैं? 200। ठीक है, ये मैंने केमिकल ए के लिए लिख दिया, ये केमिकल C1 और केमिकल C2 के लिए लिख दिया। अच्छा, तो इसको मैंने ए लिख दिया, इसको मैंने बी लिख दिया, इसको मैंने सी लिख दिया। अच्छा, पहले तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं? कॉमन पार्ट से। कॉमन कितने लोग हैं? 30। तो ये वाला जो सेगमेंट है ना, वो आपका कितना है? 30 है। सही है। दूसरा पार्ट ए में कितने लोग हैं टोटल? यहाँ से लेकर के यहाँ तक ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये टोटल कितना? 120। तो 30 यहाँ पर है साहब, तो ये कितना हो गया? 90 हो गया। अच्छा, इस वाले पार्ट में टोटल कितने हैं? 50। टोटल कितना है? 50। 30 ऑलरेडी देयर, तो ये वाला सेगमेंट कितना हो गया? 20। अब आप जरा देखो, मैं इसको रब कर दे रहा हूं ना। चलो, व्हाट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन? केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। मतलब मुझे ये वाला पार्ट चाहिए था, तो ये वाला पार्ट मतलब मुझे पहला आंसर चाहिए था ए। कितना आंसर है साहब? 90। पहले भी इतना ही आया था। केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1, तो केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1 मतलब मुझे B निकालना था, तो B कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। बिल्कुल सही, ये भी आंसर। तीसरा आंसर क्या था? तीसरा पूछ रहा है केमिकल C1 और केमिकल C2, केमिकल C1 और केमिकल C2, मतलब मुझे पूरा का पूरा पार्ट चाहिए। अरे ये A यूनियन B होता है ना साहब, तो A यूनियन B चाहिए, मतलब मुझे क्या चाहिए? A प्लस B प्लस C चाहिए। तो A प्लस B प्लस C निकालो, 90 प्लस 30 प्लस 20, तो 90 प्लस 30 प्लस 20, एंड दैट इज नथिंग बट वॉट? 140। सेम आंसर आएगा। देखो, पहले भी 140 आया था। या आपने फॉर्मूले की हेल्प से निकाला, या आपने डायरेक्ट वेनिन डायग्राम की हेल्प से निकाल लिया। दोनों ही वर्किंग मेथड सही है ना? तो किसी से भी कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं ना, कोई इशू नहीं। हाँ, ये आपको देखना पड़ेगा, कई बार यह आसान होगा, कई बार वो आसान होगा, तो देखेंगे कहाँ पर कौन सी आसानी हो रही। तो जो भी आसान होगा उसको अपन फॉलो कर लेंगे। ठीक, बड़ा सा क्वेश्चन होगा, मतलब पक्का है कि इसका सोल्यूशन बहुत ही आसान होगा। अ क्लास हैज़ 175 स्टूडेंट्स, following is the description showing the number of students studying one or more of the following subjects in this class. मैथमेटिक्स पढ़ने वाले कितने हैं? 100, फिजिक्स पढ़ने वाले हैं 70, केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं 46, मैथ्स एंड फिजिक्स के कितने हैं? 30, मैथ्स एंड केमिस्ट्री के कितने हैं? 28, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के कितने हैं? 23, मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 18. How many students are enrolled in mathematics alone, physics alone, chemistry alone? Are there students who have not offered any of these 3 subjects? देखो, एक काम करते हैं साहब, इस क्वेश्चन को वेनिन डायग्राम की हेल्प से करना ज़्यादा आसान दिख रहा है मुझे, नहीं? अदरवाइज A यूनियन B यूनियन C, और वो बनाते बनाते टाइम निकल जाएगा। तो देखो, मैंने क्या किया, ये सेट ए लिया, सेट बी, सेट सी। कोई दिक्कत? अच्छा, तो साहब एक और काम करना बचा है। कोई प्रॉब्लम? ये जो सेट है ना, ये यूनिवर्सल सेट बना दिया मैंने। इसमें टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? टोटल 175। अच्छा, फिर क्या किया मैंने? इसको मैंने लिख दिया साहब सेट ऑफ फिजिक्स। नहीं, सबसे पहले किससे स्टार्ट हुआ है? मैथ से ना, तो इसको मैथ्स लिख देता हूँ ना साहब।
इसको मैंने लिख दिया मैथ्स, इसको लिख दिया केमिस्ट्री के फिजिक्स लिख दूँ, और इसको लिख दिया मैंने केमिस्ट्री। 3 सेट्स हैं, सही है। अच्छा, मैंने ये बात आपसे शेयर की थी, जितने भी आपको अलग अलग ब्लॉक्स दिख रहे हैं ना, सबको आप कुछ नाम दे देते हो ना। इसको ए लिख दिया, इसको बी लिख दिया, इसको सी लिख दिया, फिर इसको डी लिख दिया, इसको ई लिख दिया, इसको एफ लिख दिया, और एक ये कॉमन पार्ट है, इसको मैंने जी लिख दिया। अच्छा, वेनिन डायग्राम को की हेल्प से जब भी आप क्वेश्चन करें तो स्टार्ट विद द कॉमन पार्ट, हमेशा ऐसा करें। तो सबसे पहले तो ये देखो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों पढ़ने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में एनरोलमेंट कितने लोगों को मिला है? 18। तो जी सेक्शन आपका कितना हो गया साहब? 18। कोई डाउट? अच्छा, फिर आप 2-2 लेकर के चले। मैथ्स एंड फिजिक्स, क्या देख रहा हूं मैं? मैथ्स एंड फिजिक्स। तो मैथ्स एंड फिजिक्स का ब्लॉक ये है, ये मैथ्स एंड फिजिक्स का ब्लॉक है, उसमें 18 ऑलरेडी हैं। तो टोटल मैथ्स और फिजिक्स पढ़ने वाले कहाँ हैं? जल्दी देखो, ये है मैथ्स एंड केमिस्ट्री। मैथ्स एंड फिजिक्स के कितने? 30। मैथ्स एंड फिजिक्स में कितने हैं? 30। मतलब इस वाले ब्लॉक में कितना होना चाहिए साहब? 30 होना चाहिए। तो 30 में से 18 तो पहले से दिख रहे हैं आपको, तो ये वाले ब्लॉक में कितना आ जाएगा? 12। टोटल मैथ्स और फिजिक्स पढ़ने वाले 30 हैं, उनमें से 18 + 12 हो गए। ओके, अच्छा, फिर क्या देखना है? मैथ्स एंड केमिस्ट्री में कितने? 28। ये मैथ्स और केमिस्ट्री का ब्लॉक है साहब, है ना? ये मैथ्स और केमिस्ट्री कॉमन पार्ट, नहीं मैथ्स और केमिस्ट्री तो ये होगा ना साहब, हाँ। तो दिस वन इज मैथ्स एंड केमिस्ट्री। ये टोटल कितना है साहब? 28। तो एफ में कितना हो जाएगा साहब? 10 हो जाएगा। फिर आपको दिख रहा है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में कितने हैं? 23। अच्छा, तो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉमन पार्ट ये वाला है, इसमें टोटल कितने हैं? 23। मतलब ये वाला ब्लॉक कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अच्छा, अब आप सिंगल सब्जेक्ट पे आ जाओ। मैथ्स में कितने लोग हैं? 100। तो मैथ्स का ब्लॉक कौन सा दिख रहा है? ये पूरा का पूरा मैथ्स को सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये टोटल कितना होना चाहिए साहब? 100। तो 12 + 18 30, 30 + 10 40। तो ये कितना हो गया साहब? 60। एनी डाउट? अच्छा, तो फिर फिजिक्स में कितने हैं? 70। ये टोटल कितना होना चाहिए? 70। तो 12 + 18 30, 35। तो ये वाला ब्लॉक कितना हो जाएगा साहब? 35। और फाइनली केमिस्ट्री में कितने स्टूडेंट्स दिख रहे हैं? 46। केमिस्ट्री में एनरोल कितने लोगों को एनरोलमेंट मिला है? 46 को। तो ये वाला ब्लॉक 46 होना चाहिए। तो 28 + 5 कितना हो गया? 33। और 46 चाहिए, तो ये 13 हो जाएगा। अरे कोई दिक्कत है? हाँ जी, हाँ, मेरा ब्लॉक डायग्राम कंप्लीट हो गया। ब्लॉक डायग्राम बोले तो वेनिन डायग्राम। ओके, अब उसने जो जो पूछा है वो आप करते जाओ। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन मैथमेटिक्स अलोन? मैथ्स अलोन का मतलब मैथ्स ओनली। तो मैथ्स ओनली मतलब ए चाहिए मुझे। अरे मैथ्स ओनली मतलब ए वाला पार्ट है ना, ये मैथ्स ओनली का ये वाला पार्ट है। कितने स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं मैथ्स ओनली में? 60। अच्छा, तो फिजिक्स ओनली में बता दो जरा। फिजिक्स ओनली मीन्स बी सेगमेंट 35। केमिस्ट्री ओनली, दैट इज सी सेक्शन कितना है? 30। ये आपका आंसर हो गया। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन मैथ्स अलोन, फिजिक्स अलोन एंड केमिस्ट्री अलोन? ये आपके आंसर हो गए। अच्छा, फिर क्वेश्चन उसने क्या पूछा है? आर देयर स्टूडेंट्स हु हैव नॉट ऑफर्ड एनी ऑफ दीज 3? ऐसे कोई बच्चे हैं जिनको कोई भी सब्जेक्ट ऑफर नहीं किया गया। मतलब मुझे ये देखना है कि इस वाले ब्लॉक में कुछ बच रहा है क्या। यहाँ पर कुछ मुझे देखना पड़ेगा कि साहब ये कौन से स्टूडेंट्स होंगे? वो स्टूडेंट्स होंगे जिनको ना तो फिजिक्स, ना ही केमिस्ट्री और ना ही मैथ्स ऑफर हुई होगी। तो मैं ये सम करके देख लेता हूँ साहब। अगर ये 175 आ जाए जितना टोटल था, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। ऐसे स्टूडेंट्स जिनको कोई भी सब्जेक्ट ऑफर नहीं किया गया है, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे? 0। लेकिन अगर
ये सम 175 से कम होगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा साहब कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको कोई भी सब्जेक्ट ऑफर नहीं हुई है। तो ऐड करके देख लो साहब, यहाँ तक कितना था 100 है ना, तो 100 + 40 35 + 5 40, तो ये 140 हो गया, 140 + 13 153। तो 153 स्टूडेंट्स आर देयर हु आर एनरोल्ड इन आइदर ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स। तो कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कोई भी सब्जेक्ट ऑफर नहीं हुई है? 175 - 153, अरे 175 - 153 कितने हो जाएंगे? आई होप कि हाँ इतना बनता है आपसे, 22 आ जाएगा आंसर। तो 175 - 153 करोगे, 175 150 कितना काउंट किया था अपन ने? 153, तो 175 - 153 22 स्टूडेंट्स हो जाएंगे जिनको कोई भी सब्जेक्ट ऑफर नहीं किया गया है। तो मैं लिख देता हूँ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, पहले तो लिख लेता हूँ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अच्छा इसका मतलब तो समझ में आ रहा है ना, ये M यूनियन P यूनियन C, M यूनियन P यूनियन C का मतलब क्या? आइदर इन मैथ्स और इन फिजिक्स और इन केमिस्ट्री, मतलब या तो मैथ्स में है या फिजिक्स में है या केमिस्ट्री में है, मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम। तो मैं लिख देता हूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफर्ड एटलीस्ट number of students offered at least one subject, ये कितने हैं? That is nothing but what? ये जो लिखना है वो ये है साहब, A + B + C + D + E + F, और ये जब आपने निकाला था साहब +G, ये आपने निकाला तो कितना आया था? 153 आया था, है ना? तो आपका फाइनल क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स नॉट ऑफरिंग एनी सब्जेक्ट्स, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट ऑफर्ड एनी सब्जेक्ट, that is equals to what? 175 minus 153, and that is nothing but what? 22। तो कुल मिलाकर के 22 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको कोई भी सब्जेक्ट ऑफर नहीं किया गया है। अच्छा मान लीजिए कि इसका सम जो है ना, इसका सम 175 आ जाता, मतलब यूनिवर्सल सेट और A यूनियन B यूनियन C दोनों ही चीज़ें एक हो जाती। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, और भी क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं ना, डिस्कस कर लेते हैं जरा। अ कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, 15 इन बास्केटबॉल एंड 20 इन क्रिकेट। एक कॉलेज में अवार्ड दिया जा रहा है ना, तो 38 मेडल्स किस में मिले हैं? फुटबॉल में। यार ये फुटबॉल को ए मान लेते हैं ना, सेट ए फुटबॉल के लिए, अच्छा सेट बी बास्केटबॉल के लिए, और सेट सी फॉर क्रिकेट। तो लिखने में आसान होगा ना, लिखने में आसान हो जाएगा थोड़ा सा कि एन ए कितना दिया हुआ है साहब? 38, एन बी कितना दिया हुआ है? 15, क्रिकेट वाले कितने हैं साहब? 20। ओके, इफ दीज मेडल्स वेंट टू अ टोटल ऑफ 58 मेन। अच्छा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट, इसी को अभी मैंने मान लिया कि ये A यूनियन B यूनियन C, टोटल कितने लोग हैं साहब? 58। इफ दीज मेडल्स वेंट टू अ टोटल ऑफ 58 men and only 3 men got medals in all the 3 sports, that means number of persons in A intersection B intersection C is given equals 3. Question is, how many received medals in exactly 2 of the 3 sports? Okay, आपको इस बार क्या निकालना है? How many students, है ना, कितने ऐसे हैं जिनको exactly 2 of the 3 मिला है? अच्छा, exactly 2 of the 3 बोले तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया कि exactly 2 of the 3 sports का मतलब ये था साहब, exactly
2 of the 3। जल्दी से बताओ क्या लिखते थे अपन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन ए माइनस 3 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस तरह का कुछ आपने पढ़ा था, एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 का ये था। तो ये रिजल्ट याद तो होना ही चाहिए ना, याद तो होना ही चाहिए। अच्छा साहब ये तो कहीं से दिया नहीं हुआ है यार। अच्छा हाँ ये दिया हुआ है, तो ये कहीं से निकालना पड़ेगा तब आपका काम बनेगा। तो ये और ये जो 3 चीज़ें दी हैं इसकी हेल्प से मैं ये निकाल लेता हूँ। देखो कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे ना, ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यू बी यू सी दैट इज इक्वल्स व्हाट, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस क्या था, एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला आपके पास है। अच्छा अब जरा देखो, सब चीज़ें तो दे के रखी है उसने ये भी दे दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है और ये भी दिया है। तो बस 3 चीज़ों का सम चाहिए, इसको मैंने इधर शिफ्ट कर देना है, बाकी सबकी वैल्यूज़ रख देनी है। तो ये कितना हो जाएगा साहब, ये कितना दिया हुआ 58। अच्छा दैट इज इक्वल्स टू एन ए 38 प्लस 15 प्लस 20 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस ये भी दे के रखा है उसने, कितने हैं 3 है तो प्लस 3 हो जाएगा। अच्छा इसको सबको इधर शिफ्ट करके वैल्यू निकाल दो यार। तो मेरे ख्याल से कैलकुलेशन आपका तो इतना अच्छा होना चाहिए कि एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए, ये तो मिल जाएगा कि नहीं, कितना आएगा ज़रा बता दो भाई। इन 3 को इधर शिफ्ट कर दिया और इसको इधर शिफ्ट कर दिया, 38 प्लस 20 58, तो 58 कैंसिल, 15 प्लस 3 बचेगा 18 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 18। बस आपका काम हो गया साहब। तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है 18 है। सो दिस वन इज 18 माइनस 3 टाइम्स दिस, सो 3 into 3 and that is 9 is your answer. So how many students are there? How many students are there who got or who received medals in exactly 2 of the 3 sports? No students ऐसे हैं जिनको exactly 2 of the 3 sports में मेडल मिला होगा। तो देखें इस क्वेश्चन को। चलिए मेथड 2 मीन्स विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। अ कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल्स। तो एक काम करते हैं भाई, 1 2 3 है ना, 3 मैंने सर्कल्स बना दिए। ये फुटबॉल के लिए है साहब, ये बास्केटबॉल के लिए और ये क्रिकेट के लिए। अच्छा मैंने हमेशा ऐसा बोला था आपसे कि आप इसको डिनोट कर दो, तो A B C, अच्छा यहाँ पर आ जाओ D, यहाँ पर आ जाओ E, यहाँ पर आ जाओ F और यहाँ पर लिख दिया मैंने G। अच्छा मैंने कॉमन पार्ट से अपन स्टार्ट करते हैं। तो साहब G वाला जो पार्ट है ना, ये तो 3 है, कहीं पे लिखा है ना 3 men got medals in all the 3 sports, तो ये 3 हो गया। अच्छा बाकी के लिए कुछ मेंशन नहीं है ना, बाकी कुछ डायरेक्ट तो दिया नहीं। अच्छा तो एक काम करते हैं साहब, फुटबॉल में टोटल कितने ये तो मालूम है, फुटबॉल में टोटल कितने हैं 38, मतलब A प्लस D प्लस F प्लस G इज इक्वल्स टू, तो अब इस बार ऐसा ही करना पड़ेगा, इस बार ऐसा ही पड़ेगा। तो A प्लस D प्लस F प्लस G, ये कितना दिया हुआ है साहब 38। अच्छा दूसरा बास्केटबॉल में कितने हैं साहब 15 हैं, मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो इसको लिख देते हैं साहब B प्लस D प्लस E
प्लस जी एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 15। अच्छा तीसरा ये वाला पार्ट भी दिया हुआ है, ये वाला पार्ट देने का मतलब क्या हुआ कि C प्लस E प्लस F प्लस G एंड दैट इज इक्वल्स टू 20। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये सबका सम भी दिया हुआ है क्योंकि लिखा हुआ है ना कहीं पर टोटल हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर 58। दैट मीन्स A प्लस B प्लस C प्लस D, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G। Now this time it is given equals what 58। अब जल्दी से ये भी बता दो साहब आपको निकालना क्या है, हाउ मैनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स का मतलब एग्जैक्टली फुटबॉल एंड बास्केटबॉल में ये वाला पार्ट आएगा D, एग्जैक्टली इन B एंड C बास्केटबॉल एंड क्रिकेट मीन्स E दिस पार्ट, एंड एग्जैक्टली इन फुटबॉल एंड क्रिकेट मीन्स F पार्ट। मतलब रिक्वायर्ड भी आपको पहले से लिख लेना था, क्या निकालना है आपको D प्लस E प्लस F, ये पार्ट आपको निकालना है, दिस वन इज रिक्वायर्ड। ओके अच्छा अब साहब ये इक्वेशन है, उम्मीद करते हैं कि इन इक्वेशन की हेल्प से आप D प्लस E प्लस F निकाल ही लोगे कैसे भी करके ना, इसमें कोई रूल नहीं फॉलो करना है, कोई जो भी मैनिपुलेशन हो जाए वो कर सकते हो आप। अच्छा G तो दिया हुआ है साहब, G की वैल्यू मुझे मालूम है, कितना दिया है G 3 है, तो सब में G पहले रख दो, यहाँ से मुझे मिलेगा A प्लस D प्लस F, A प्लस D प्लस F इज इक्वल्स टू व्हाट 38 माइनस 3 दैट इज नथिंग बट 35। ओके अच्छा यहाँ से B प्लस D प्लस E, B प्लस D प्लस E कर दो, कितना आ जाएगा B प्लस D प्लस E 15 माइनस 3 दैट इज व्हाट 12, और फिर यहाँ से G3 रख दो, C प्लस E प्लस F, C प्लस E प्लस F एंड दैट इज 20 माइनस 3 इज 17। यहाँ पर भी G रख दो तो व्हाट वी गेट A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F, ये कितना दिया हुआ है साहब 58 माइनस 3 इज व्हाट 55। अब इतने सारे इक्वेशन है, इसकी हेल्प से मुझे निकालना है D प्लस E प्लस F, ये निकालना है साहब है ना, D प्लस E प्लस F निकालना है। अच्छा एक काम करो, इन सबको ऐड कर दो, एडिंग ऑल दीज, तो जरा देखो क्या मिलेगा, A प्लस B प्लस C मिलेगा क्या, हाँ जी, D 2 बार है, E भी 2 बार है और F भी 2 बार है, मीन्स 2D प्लस 2E प्लस 2F। तो एडिंग ऑल दीज, तो जब मैंने ऐड किया तो मुझे मिला साहब A प्लस B प्लस C प्लस 2 टाइम्स D प्लस E प्लस F, और ये कितना आ रहा है साहब, दिस प्लस दिस 47 एंड 47 57 57 प्लस 7 64। बहुत ही अच्छा ना, ये 64 आ रहा है। अच्छा इसको मैंने क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया, और ये जो लिखा हुआ है इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया। अच्छा आप खुद से सोचो जरा कि अगर मैं इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्या करूं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो A प्लस B प्लस C और A प्लस B प्लस C तो कट जाएगा। अच्छा ट्वाइस ऑफ D प्लस E प्लस F और D प्लस E प्लस F, तो एक D प्लस E प्लस F बच जाएगा ना, तो यहाँ से 1 माइनस 2 कर दीजिए आप, तो 1 माइनस 2 करने से क्या मिलेगा आपको, मिलेगा D प्लस E प्लस F एंड दैट इज नथिंग बट 64 माइनस ऑफ 55 एंड दैट इज व्हाट 9। पहले भी यही आंसर आया था है ना कि D प्लस E प्लस F एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स में कितने लोग होंगे साहब, 9, बिल्कुल सही है। तो वेन इन डायग्राम में कई बार देखो सारे ब्लॉक्स आपको पहले से नहीं मिलेंगे ना, इस क्वेश्चन में उसने सबका सम दे के रखा है, ये पूरा दिया है, लेकिन 2 वाले नहीं दिए हैं, इसलिए आपको ये D E F डायरेक्ट नहीं मिल रहा है। तो फिर ठीक है पूरा लिख लो और लिख करके अपन निकाल लेंगे, वो तो देखना पड़ेगा कई बार क्वेश्चंस में क्या क्या दिया हुआ है। तो मैंने आपको इसको दोनों वर्किंग से बता दिया ना, वेनिन से भी बता दिया और डायरेक्ट फॉर्मूले की हेल्प से भी बता दिया। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, होपफुली आपको ये बन जाएंगे। अब क्या क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 8 सेकेंड,
देयर आर टू फाइनाइट सेट्स हैविंग m एंड n एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली, है ना, दो सेट्स हैं, पहले सेट में कितने एलिमेंट हैं m और दूसरे सेट में n एलिमेंट्स हैं, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकेंड सेट। अच्छा मुझे बताओ, ये पहला सेट है जिसमें कितने एलिमेंट हैं, m एलिमेंट हैं, दूसरा सेट है उसमें कितने एलिमेंट हैं, n एलिमेंट्स हैं, और पहले वाले सेट के सबसेट्स का नंबर दूसरे वाले सेट के सबसेट्स के नंबर से 56 ज़्यादा है, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n। क्या क्या दिया हुआ है ना, सेट A है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 to the m, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B इज इक्वल्स टू व्हाट, m दिया हुआ है, अरे n दिया है भाई। अच्छा सेट A में m एलिमेंट्स हैं तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे इस सेट में, नंबर ऑफ सबसेट्स 2 to the power m होंगे। अच्छा इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे साहब, 2 to the power n होंगे, एंड व्हाट इज गिवन, इसमें इससे 56 ज़्यादा हैं, व्हाट इज गिवन, 2 to the power m minus 2 to the power n is equals to 56। This one is your question। अब आपसे बोला है कि साहब m और n बता दो, n is equals to what। अच्छा m और n पॉजिटिव इंटीजर ही होंगे या फिर ज़ीरो भी हो सकता है, मैं नहीं कह रहा। अच्छा आप खुद से सोच लो, जैसे ये देखो ये डायरेक्ट इक्वेशन तो है नहीं कि आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर पाओ, आपको कंपेयर करके सॉल्व करना पड़ेगा ना। 56 तो डिफरेंस है। अच्छा तो m की जगह मैं अगर 5 ले लूँ, ऐसे सोच रहा था मैं, m की जगह अगर मैं 5 ले लूँ तो 2 to the power 5 तो 32 होता है, तो 32 माइनस कोई भी पॉजिटिव नंबर करोगे तो क्या 56 आ सकता है, नहीं आ सकता, मतलब m की वैल्यू 5 से तो ज़्यादा होगी। अच्छा चलो 6 रख के देखते हैं, तो अगर मैंने m की जगह 6 रखा तो 2 to the power 6 कितना हो गया, 64। हाँ जी, तो 64 माइनस कुछ बराबर 56 पॉसिबल है। अच्छा तो क्या रख दूँ यहाँ पर, 64 में से क्या सब्ट्रैक्ट करने से 56 मिलेगा भाई, 8 करने से, अरे 64 माइनस 8 इज़ व्हाट, 56, और 8 क्या होता है, 2 to the power 3, बस तो काम हो गया साहब। मैं लिख सकता हूँ कि 2 to the power 6 माइनस 2 to the power 3 इज इक्वल्स टू 56, ऐसा कन्फर्म, वी नो दिस, सो व्हाट वन कैन से m इज इक्वल्स टू व्हाट 6 और n इज इक्वल्स टू व्हाट 3, m की वैल्यू 6 हो जाएगी और n की वैल्यू 3 हो जाएगी। अरे ठीक है, और भी कोई वर्किंग बता दूं क्या भाई, ऐसा कुछ देख सकते हो आप, देखो अरे ये हिट एंड ट्रायल ही है साहब, 2 to the power n इज इक्वल्स टू 56 है ना, तो 56 को पहले तो आप लिखो 2 की पावर में किससे कैंसिल होगा, 8 है ना, तो इसको आप 8 into 7 लिख सकते हो ना, 8 into 7। अच्छा यहाँ से आप 2 to the power n बाहर निकाल लो, तो ये बचेगा कितना, 2 to the power m माइनस n और माइनस 1, ऐसा हो जाएगा। अरे ये बात समझ में आती है कि नहीं भाई, 2 to the power n आपने बाहर निकाला तो ये बचेगा कितना, 2 to the power m डिवाइडेड बाई 2 to the power n, तो ऊपर जाके 2 to the power m माइनस n, और ये बाहर निकाल लिया तो ये तो 1 आ जाएगा। अच्छा मैं इसको इससे कंपेयर कर देता हूँ, ये दिस इंटू दिस इक्वल्स 8 into 7, तो दिस इज इक्वल्स टू दिस और दिस इक्वल्स टू 7, तो 2 to the power n इज इक्वल्स टू 8, तो यहाँ से तो मुझे साहब मिल गया n इज इक्वल्स टू 3, और इसको कंपेयर किया इससे तो 2 to the power m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 7, तो 2 to the power m माइनस n इज इक्वल्स टू 8, और 8 को लिख सकते हैं अपन 2 to the power 3, तो m माइनस n इज इक्वल्स टू 3, और n आपने निकाला हुआ है 3, तो m माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3, सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m, m इज इक्वल्स टू 6। ऐसा भी कर सकते हैं ना, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है भाई। आपको ये मालूम है ना कि m और n तो इंटीजर ही होंगे, नेगेटिव भी नहीं हो सकते। अरे काउंटिंग कभी नेगेटिव होगी, अगर मैंने बोला सेट A में m एलिमेंट्स हैं
तो m क्या -5 हो सकता है? किसी सेट में -5 एलिमेंट्स हो सकते हैं? नहीं, मतलब m और n क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स ही होंगे, या फिर 0 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ 0 भी पॉसिबल m के लिए तो नहीं है, क्योंकि दिस माइनस दिस इक्वल्स 56 है। तो अगर ये 0 कर दूंगा तो 2 to the power 0 1 हो जाएगा। 1 माइनस कोई भी नंबर 56 कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता। ये क्या लिखा हुआ पहले तो ये समझ में आया आपके, है ना? डिजाइन देख के डरना नहीं ना। ये लिखा है T इज अ सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स X सच दैट, ये सच दैट टाइप का है, ये जो बना हुआ है इसकी मीनिंग यहाँ पर सच दैट है। T इज व्हाट? सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स X सच दैट दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू दिस एक्सप्रेशन। इज T एन एम्प्टी सेट? जस्टिफाई योर आंसर। उसने ये पूछा है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने से जो भी x की वैल्यू मिलेगी, तो क्या वो, अगर मान लीजिए x की 3 वैल्यूज़ मिल गई तो मैं बोलूँगा साहब ये नॉन एम्प्टी सेट है। अगर x की वैल्यू कुछ भी नहीं आ रही, 0 आ रहा है, मतलब 0 नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो मैं बोलूँगा वो सेट कैसा सेट होगा? एम्प्टी सेट होगा। तो अल्टीमेटली आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। मैं जो बोल रहा हूँ समझ पा रहे हो? T is what? Set of elements X such that this equation satisfies. Is T an empty set? मतलब इसको सॉल्व करने से x की कोई वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही? अगर कोई वैल्यू आएगी तो मैं बोलूँगा कि एम्प्टी सेट नहीं है, और अगर कोई भी वैल्यू x की नहीं आएगी तो मैं बोलूँगा कि T कैसा सेट होगा? एम्प्टी सेट होगा। तो इसको सॉल्व करना है केवल। अच्छा, मुश्किल क्या है? ये क्वेश्चन मैंने पर्पजली लिया है ना, इसको आप मार्क करके रखेंगे। आपके साथ क्या दिक्कत आती है वो आपको शेयर करना है। ज़रा देखो, मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की तो क्या मिला? x + 5 डिवाइडेड बाय x - 7 माइनस ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 4x माइनस ऑफ 40 डिवाइडेड बाय 13 माइनस ऑफ x। चलो इसको सॉल्व करते हैं साहब। तो मैंने लिखा x + 5 माइनस ऑफ 5x प्लस 35 डिवाइडेड बाय x - 7 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स x माइनस ऑफ कितना? x - 10 डिवाइडेड बाय 13 माइनस ऑफ x। अच्छा, इसको मैंने सॉल्व किया तो ये ऊपर मिल रहा है साहब 35 + 5 40 माइनस ऑफ 4x डिवाइडेड बाय x माइनस ऑफ 7 is equals to 4 times x - 10 divided by 13 minus x। देख रहे हो ना आप? अच्छा, फिर मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने -4 बाहर निकाला पर्पजली, जिससे कि ये x - 10 बन जाए, डिवाइडेड बाय x - 7 कर दिया। अच्छा, दैट इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स x - 10 डिवाइडेड बाय 13 माइनस x। अरे कोई दिक्कत? यहाँ से -4 मैंने बाहर निकाला ना, तो ये इसको मैं ओपन करूँगा तो ऊपर वाले ही आ रहा है ना, -4x + 40। अच्छा, अब आप इधर देखेंगे ना, इधर देखें। अब क्या होगा कि जैसे आपको ये दिखेगा ना तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं साहब, सही है। अच्छा, जब मैंने कैंसिल किया तो मुझे क्या एक्सप्रेशन मिल रहा है? मुझे क्या एक्सप्रेशन मिलेगा यहाँ से? -4 डिवाइडेड बाय x - 7 इज इक्वल्स टू, अच्छा 4 डिवाइडेड बाय 13 माइनस x। अरे यही आएगा कि नहीं? अच्छा, ये 4 और 4 भी उड़ा देता हूँ ना यार, -1 ऊपर बचेगा ना, -1, तो ये -1 कर दिया और यहाँ से तो +1 आएगा। अच्छा, फिर और सॉल्व कर रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -13 + x इज इक्वल्स टू, इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो x - 7। अच्छा, x और x कैंसिल, -13 इज इक्वल्स टू -7, और यहाँ से क्या हुआ साहब? 13 = 7। ए भाई, ये कौन सी कहानी आ गई? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि अगर ये इक्वेशन मुझे दे दिया जाए सॉल्व करने के लिए तो मैं इसकी हेल्प से ये प्रूव कर सकता हूँ कि 13 = 7 है। अरे भाई, ये क्या अजीब सी चीज़ आ रही है? उसने तो बोला साहब सॉल्व करके x बताइए, और हमने x को तो उड़ा दिया, तो केवल प्रूफ क्या मिल रहा है कि 13 = 7। इज दिस पॉसिबल? ये तो टोटल बकवास बात है ना, टोटल बकवास बात, ये गलत बात। मतलब मिस्टेक कहाँ पर हो रही है ये ढूंढना है ना, ये ढूंढना है।
तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मिस्टेक हमसे हो रही वो ये वाली है मिस्टेक। ये जो मैंने कट्टा कुट्टी कर दी ना, कट्टा कुट्टी कर दी, ये काटने वाला सिस्टम जो है वो मैथ्स में होता नहीं। देखो जब छोटी क्लासेस में अपन होते हैं तो कई बार अपन को बताया नहीं जाता, या उस समय बताना पॉसिबल भी नहीं होता, क्योंकि उस समय समझाना आसान काम नहीं होगा आपके लिए। तो मैथ्स में कैंसिलेशन नाम की चीज़ नहीं होती। हाँ, कांस्टेंट्स अगर हैं तो दोनों साइड पे मैं क्रॉस कर सकता हूँ। तो मैं क्या कह रहा था कि इसमें कोई ना कोई मेजर मिस्टेक है, और वो मिस्टेक ये है कि जब मैंने ये वेरिएबल्स को कट कर दिया। वेरिएबल्स को कभी भी क्रॉस नहीं किया जा सकता, वेरिएबल्स को कभी भी काट नहीं सकते हम। मैथमेटिक्स में ये 100% है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना, जैसे मैंने आपसे बोला कि साहब सॉल्व दिस इक्वेशन। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, सॉल्व x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आप छोटी क्लासेस में अपन क्या करते थे, छोटी क्लासेस में क्या करते थे कि एक x यहाँ से और एक x यहाँ से उड़ा देते थे, और जल्दी से सॉल्व करके बता देते थे साहब x की वैल्यू 4 आएगी। और ये पूरी तरह से गलत हो जाएगा, पूरी तरह से गलत है साहब। x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x का आंसर x इज इक्वल्स टू 4, ऐसा गलत होगा। क्यों गलत होगा मैं आपको बताता हूँ। देखो ये x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x जो लिखा है ना, दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो इसके 2 जीरोज आएंगे, 2 रूट्स आएंगे, 2 वैल्यूज आएंगे, और आपने क्या किया कि एक ही वैल्यू निकाली है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x इक्वल 0 करोगे। यहाँ से x को आप कॉमन लोगे और x माइनस 4 इक्वल 0 किया। नाउ दिस वन गिव्स यू आइदर x इक्वल 0 और x इज इक्वल्स टू 4। यहाँ से आपको एक्चुअल दोनों जीरोज मिल रहे हैं, एक 0 और एक 4। ये सही वर्किंग हो गई। मतलब कैंसिलेशन लॉ नेवर होल्ड्स इन केस ऑफ मैथमेटिक्स फॉर द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को आप काट नहीं सकते, कॉन्स्टेंट्स होंगे 5 5 है काट दो, लेकिन x और x दिए हुए वेरिएबल्स को आप कभी भी कट नहीं कर सकते। और जो मिस्टेक मैंने यहाँ पर कर दी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि साहब ये गलत है, आपको इसको सही करना होगा, ये गलत है। बात समझ में आ रही? मैंने मेंशन कर दिया है कि मिस्टेक क्या हो रही। हाँ जी, तो करेक्ट वर्किंग क्या होगी वो जल्दी से मैं करके बताता हूँ आपको। तो साहब इसकी करेक्ट वर्किंग ये होगी, इसको मैं ऐसे ले ले रहा हूँ, ऐसे ले ले रहा हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है साहब, माइनस ऑफ 4 टाइम्स x माइनस 10, और यहाँ पर लिखा है साहब डिवाइडेड बाय x माइनस 7, और ये लिखा है साहब दैट इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स x माइनस 10 डिवाइडेड बाय 13 माइनस x। सही है? अच्छा अब आप जरा देखें, हाँ 4 को मैं कैंसिल कर सकता हूँ, 4 को मैंने कैंसिल कर दिया। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये कितना हो गया, माइनस ऑफ x माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय 13 माइनस ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 7। सही है? अच्छा इसको पूरा उधर शिफ्ट कर दिया तो क्या मिलेगा जरा बताओ, x माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 7 प्लस x माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय 13 माइनस ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। अच्छा x माइनस 10 यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 10 मैंने कॉमन ले लिया। अंदर जो मिलने वाला है वो क्या है, x माइनस 7 प्लस 13 माइनस ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। x और x कैंसिल कर दो। अच्छा 13 माइनस 7 6, सो 6 टाइम्स x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। what it implies x minus 10 is equals to 0 and what it implies x is equals to 10। मतलब x की वैल्यू, इसको सॉल्व करने से x की वैल्यू क्या आ रही है 10। इसका मतलब t क्या हो गया, what it implies t is what set of elements x, मतलब set t में क्या आएगा 10 आएगा। x की वैल्यू चाहिए साहब। now is this an empty set? No, this one is not an empty set, but this one is what? Singleton set। ये singleton set है, empty set नहीं है, तो not an empty। ये आपका आंसर हो जाएगा।
नॉट एन एम्प्टी सेट। उसने बोला सर जस्टिफाई योर आंसर, तो हमने जस्टिफाई कर दिया साहब, क्योंकि टी में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1, एंड दैट्स वाई दिस वन इज नॉन एम्प्टी सेट। तो थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे, ये वर्किंग आप ऐसा लिख लें और यहाँ पर क्रॉस करके लिख दें कि गलत है, दैट इज 100% रॉन्ग। क्यों? क्योंकि कैंसिलेशन ऑफ वेरिएबल्स इज नॉट वैलिड। नेक्स्ट क्लास में हम आपके डाउट्स जरूर क्लियर करेंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा।